Hello dear student, I am Varun Nishat from LPM school. Today we will discuss about the chapter Fun with Magnet. Dear student, during our class we are discussing about the history of magnet, what is magnet, types of magnet, ancient magnet, lot of things we are discussed in our classroom which are related to our magnets. Magnet history, magnet lodestone, first time the sapphire, which name is magnet in the western countries, that is Rome, Yunnan, that is he show the magic, the black stone which attract the iron containing things during the time of controlling their ship or their uh, animals during they are grazing, during the controlling their stick which are made up from the iron get accidentally attract to their black stone, and he was starting to show the magic which black stone which attract the iron containing things. That was that was the time where the history of magnet get started. So magnet is a actually there is a made up from actually naturally occurring substance, that is lodestone, and previously it was called as a black stone which attract iron containing thing. So stone, lodestone, that is Fe3O4, magnetite, that we called magnetite. So magnetite की वजह से जो है उसको बोला जाता था कि ये फेरक, that is the reason behind it. It attract the iron containing things because it contain also iron. The iron already contained here. That's why the reason behind it. So shape of magnet, shape of magnet. There is some natural occurring and artificial. Natural occurring magnet कोई शेप नहीं होता है, वो इरेगुलर शेप का होता है, स्टोन होता है वो, और उसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो उसके जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ी लॉस भी होती है, और जो मैन उसका कोई शेप नहीं होता, दूसरा थोड़ा मैग्नेटिक पावर जो होता है वो थोड़ा कम होता है इन कंपेरिजन टू आर्टिफिशियल मैग्नेट। उसमें इसमें क्वांटिटी होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट में, वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसको बनाने में ताकि उसकी मैग्नेटिक पावर बहुत अच्छी हो। तो दो तरह के मैग्नेट होते हैं, नेचुरल मैग्नेट एंड artificial magnet. Natural magnet are they are natural occurring in the form of magnetite, that is called, the formula is Fe3O4, that is magnetite, and there is उनका कोई अच्छा बेटर शेप नहीं होता है, वो इरेगुलर शेप में होते हैं, मैग्नेटिक पावर थोड़ी कम होती है बट होती है, एंड अगर उनको आप ब्रेक करेंगे, बोथ मैग्नेट आर ब्रेकेबल, दोनों मैग्नेट ब्रेक हो जाते हैं, बट व्हेन यू ब्रेक द मैग्नेट को ब्रेक करते हैं तो उनकी जो मैग्नेटिक पावर होती है, पुल करने की जो पावर होती है, वो थोड़ी कम हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। तो अर्थ भी एक तरह का हमारा क्या है, नेचुरल मैग्नेट का एग्जाम्पल है, बिकॉज इट पुल एवरीथिंग ऑन इट्स सरफेस। एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट तो उसका कोई शेप नहीं होता, लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट का शेप होता है। Artificial magnet are man-made magnet. They are available in various shapes and size for different uses. U-shaped, किस तरह का मैग्नेट होता है, U-shaped होता है, U-shaped का मैग्नेट होता है। And then dumbbell shape होता है मैग्नेट, dumbbell shape मैग्नेट होता है। एंड रिंग शेप मैग्नेट होता है। एंड बार
बार मैग्नेट, जैसे चॉकलेट बार आपका होता है जिस तरह से आपका N होगा और S होगा. Okay, so these are the shape of magnet. These are the shape of magnets. So it is the reason behind it. Various uses need to build a different type of magnet that is possible in our artificial magnet. Now dear student, properties of magnet. तो प्रॉपर्टीज मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो मैग्नेट की एक ही प्रॉपर्टी होती है कि आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस को पुल करना. लेकिन एक खास बात इसमें ये होती है कि कहाँ पे, किस पॉइंट पे इनका मैग्नेटिक पावर जो होता है वो बहुत मैक्सिमम होता है. तो मैग्नेटिक पावर जो होता है मैग्नेट का उनके पोल्स पे मैक्सिमम होता है. So property of magnet is a main, that is one of the most property of magnet, the pole of magnet. In a bar magnet, the region of strongest magnetism are near the ends. The region of ends of magnet where attraction is maximum are called the poles. अभी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, समझ सकते हैं आप यहाँ पे. So these are the bar magnet. ये बार मैग्नेट है और यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है और ये एस पोल है. तो नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल होता है. इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, समझ सकते हैं आप. मैं यहाँ पे डायरेक्शन बनाता हूँ. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट एंड वेस्ट एंड साउथ. ओके, सो दिस इज अ बार मैग्नेट एंड दिस वन इज नॉर्थ एंड साउथ. सो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है? पोल्स पे. सो दैट विल कॉल्ड नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. South pole, North pole and South pole. So maximum magnetic properties that is found in the poles region. यहाँ पे maximum होती है. But if you break this bond, अगर आप इस बार मैग्नेट को ब्रेक कर देते हैं तो यहाँ पे फिर से अगेन जनरेट हो जाता है. यहाँ पे फिर से जनरेट हो जाएगा. यहाँ पे फिर एन नॉर्थ पोल हो जाएगा और यहाँ पे फिर से नॉर्थ पोल हो जाएगा और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? साउथ पोल हो जाएगा. तो जो एंड होते हैं, द एंड्स ऑफ मैग्नेट्स आर कंसीडर्ड एज अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सो इफ यू ब्रेक द बार मैग्नेट, द अगेन पोल गेट जनरेटेड एट देयर ब्रोकन एंड्स. मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज कम इन पेयर. मैग्नेटिक दूसरी पहली प्रॉपर्टी क्या है? पोल्स होते हैं. पोल्स होते हैं. दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑलवेज कम इन पोल्स. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑलवेज कम इन पेयर. ऑलवेज कम इन magnetic property always come in pair. Directive property of magnet. Third property है directive property of magnet. Suppose that, अभी आप समझ सकते हैं यहाँ पे this one is a magnet that you can see, and this one is a new magnet that you can easily observe that here is a north and S, north and south, and ये देखिए यहाँ पे मैग्नेट चिपका हुआ है. These are the bar magnet and so
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑलवेज कम इन पेयर। अगर आप इसमें से ब्रेक कर देते हैं तो अभी आपने डिस्कस किया, अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में अलग अलग तरीके से डेवलप हो जाएगा। तो हमेशा जो भी जितने भी पोल्स होते हैं, दो ही पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दोनों पोल जो है हमेशा जब भी छोटा सा ही मैग्नेट हो उसमें से दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा आपका, एक साउथ पोल होगा। एंड दैट डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, जो डायरेक्शन होता है, जो मैग्नेट का जो डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज डायरेक्शन ऑलवेज किसमें होता है, वो कहाँ पे होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। क्योंकि नॉर्थ वाला जो पोर्शन होता है मैग्नेट का वो हमेशा क्या होता है, वो अप होता है। उसीलिए दैट्स व्हाई कॉल्ड इज अ डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करता है, जैसे मैंने आपको बना के यहाँ पे दिखाया है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे होता है। अट्रैक्टिव एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट। अब सपोज दैट अगर आप यहाँ पे दो सिमिलर पोल्स, दो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, चौथी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, दो सिमिलर पोल्स अगर साउथ पोल आपस में कोलैप्स कराते हैं या कम इन कांटेक्ट में आते हैं वो, तो दे विल स्टार्ट रिपल्शन, दे विल रिपल टू ईच अदर, वो एक दूसरे को रिपल करना शुरू कर देंगे। अगर आप नॉर्थ और नॉर्थ दोनों डायरेक्शन को, सेम डायरेक्शन को आप कम इन क्लोज में लाते हैं तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। सो सिमिलर पोल्स आर रिपेल टू ईच अदर बट अपोजिट पोल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। Important property of magnet in brief. Magnet attract object of iron, मैक्सिमम आयरन करते हैं, थोड़े अमाउंट में निकल एंड कोबाल्ट का करते हैं। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैग्नेट इज ग्रेटर एट इट्स पोल दैन इन मिडिल। मिडिल में इसकी प्रॉपर्टी कम होती है इन कंपेरिजन टू देयर एंड आर पोल्स पे। अपोजिट अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट अट्रैक्ट टू ईच अदर। सिमिलर पे अभी डिस्कस किया गया है, टू पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। दोनों मैग्नेट का जो पोल है वो कभी सेपरेट नहीं किया जा सकता। मान लीजिए आप जो यहाँ पे मैंने दिखाया आपको कि अगर यहाँ पे अगर आप नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है जिसमें से आपने ब्रेक कर दिया तो एक पीस में भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का पेयर या पोल्स जनरेट हो जाएगा। तो हम दोनों पेयर्स को आप फिर बीच में से काट दीजिए तो फिर वहाँ से जनरेट हो जाएगा, फिर से नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम दोनों पेयर्स को सेपरेट या दोनों पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। सो क्वेश्चन है व्हाट इज अ मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का आंसर क्या होगा कि क्या मैग्नेटिक फोर्स है। तो द फोर्स ऑफ मैग्नेट are the which force that will attract the iron containing substances from their ends or from their poles. It may be north pole or south pole. अपने साउथ पोल या नॉर्थ पोल से आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। So in this way we can conclude about the history of magnet, shape of magnet and different property of magnet, size of magnet and how the magnet is formed, type of magnet के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टी, चार प्रॉपर्टी डिस्कस किया कि पहला प्रॉपर्टी है वो है आपका पोल्स। मैक्सिमम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो पोल्स पे होती है, लेकिन जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑलवेज कम इन पेयर। कभी भी मैग्नेट जो होते हैं वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के पेयर में आते हैं। एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी जब भी जो अगर आप फ्री वे में आप धागे से लटका के ऐसे सस्पेंड करेंगे तो वो किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होगा। जब भी मैग्नेट होगा वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होगा। एंड जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो फोर्स जो पोल्स होते हैं पोल को सेपरेट नहीं कर सकते। दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो हाफ पोर्शन जो मैग्नेट का कवर हो चुका है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेक योर ओन मैग्नेट। आप खुद का मैग्नेट कैसे बना सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट
उसके बाद फिर हम बात करेंगे मैग्नेटिक कंपास के बारे में, और मैग्नेटिक कंपास के बारे में तो उसके बाद जो है एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट, प्रोटेक्शन ऑफ मैग्नेट, ये 2 पॉइंट हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है।